Hello students, this is your first lecture from chapter first, and I think you are very new in 9th class, so you don't know exact meaning of matter, intermolecular forces, attraction. You have lots of confusion. So now in this lecture I will try to make your all doubts clear. And now this is the first chapter named Matter in Our Surrounding. So we will continue with this chapter, and after this chapter we will start the matter is in our matter is pure, whatever is there we will talk about that. But the first chapter is that matter in our surrounding, and after that we will do the second chapter. So now what is the matter? First, matter in our surrounding. The first word is matter. So what is matter? What is matter? What is matter? It is coming in your mind. Matter. What is the matter? I think you have discussed in previous classes, 6th class, 7th class. You have discussed what is the matter, which has mass and occupies space. Means the substances which occupy space and has mass. Anything that have mass and occupies space is called matter. आपको ये बिल्कुल याद करना है, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जगह छेदता हो, occupy space, is called matter. So I think you know that what is a matter very well. And suppose I ask the example of matter, you are able to give the few examples like book, stone, copy, pen, pencil, even your body also. These are called matter. Even air. How can you explain the air is matter? So we will talk in few other activities. Now, okay, how air is said to be matter. So we will talk about in next class. In this class, what is the matter? The substances which have mass and occupy space is called matter. Now, first, before going to the detail about this chapter, first we have to classify the matter. What is the matter? Here, matter is classified into two parts. First part is pure substance. Pure substance. You can say na, matter means substance. Pure substance. You can say pure substance. And another is that impure. Impure substance, and its impure substance is called mixture. M-I-X-T-U-R-E, mixture. आप लोगों ने मिक्सचर खाया होगा, सब कुछ और कुछ कुछ, तो that is a mixture because it contains lots of things like dalmood, sev, kaju, almonds, spices, salt. That's why it is called mixture. And now, pure substance, further it is categorized in two parts. First one is that element, and second part is called compounds. Elements and compounds. And further, element classified in two categories. Not two categories, you can write 3 and 4 categories. First, metal. Second one is that non-metal. And third one is that metalloids. Metalloids. What is this? So, आप लोग, और now further mixture is categorized in two segments. Homogeneous
second one is that heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. So my dear students, please try to write what is matter? The substances which have mass and occupy space. वह कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जगह छेदता हो उसे क्या कहेंगे? मैटर. और मैटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्योर सबस्टेंस, impure substance, it is called mixture, and pure substance further classified into two parts, elements and compound. And element further classified into three parts, metal, non-metal and metalloids. And mixture classified into two parts, homogeneous and heterogeneous. You know, first going this topic, we must talk about matter के कितने स्टेट होते हैं. Actually, मैं इसको फॉलो करता हूँ. मैटर के होते हैं 5 स्टेट. हम लोग को पढ़ना है 3, लेकिन मैटर के होते हैं स्टेट कितने? 5. पहला होता है, फर्स्ट वन इज दैट, वी नो दैट. कौन सा होता है? सॉलिड. दूसरा होता है लिक्विड. Solid, liquid, and third one is that gases. These are the common state. 1, 2, 3. These are the common state, and other than 3, there are 2 more states. Fourth one is that plasma state. Plasma state, and fifth one is that Bose-Einstein condensation. Bose-Einstein condensation. So here you can see it is a fourth condition and it is a fifth state. So we have discussed what is a matter. Matter is anything, substance anything which have mass and occupy space is called matter. Matter के कितने स्रोत हैं? 5. कितने स्रोत हैं? 5. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस. चौथा क्या है? प्लाज्मा स्टेट. जो आपका गैस जलता है ना, तो गैस के जो ब्लू फ्लेम आते हैं ना, that is called plasma state. And fifth one is the Bose-Einstein state. And further, matter is classified into 2 forms: pure substance, impure substance, and pure substance further classified into elements, compound. And elements classified further in 3 states: metal, non-metal, metalloids. Compound we will talk about later. And what is the mixture? 2 kinds of mixture: homogeneous and heterogeneous. So please, students, try to write in your copy first. Written? आप लोग लिख लिए. कितने स्टेट होते हैं? 5. मैटर कितने स्टेट होते हैं? 5. सॉलिड, लिक्विड, गैस. चौथा क्या है? पांचवा क्या है? फोर्थ क्या है? प्लाज्मा. PLASMA, प्लाज्मा. और पांचवा क्या है? बोस, BOSE, बोस आइंस्टीन, EINSTEIN condensation, SATION. So please आप लोग लिखिए इसको. ये स्टेट है चौथा और पांचवा. तो मैटर क्या है? मैटर के कितने भाग बांटते हैं? मैटर के स्टेट क्या क्या होते हैं? ये था आपका इंट्रोडक्शन. इसके बाद हम चलेंगे व्हाट इज अ प्योर सबस्टेंस. सो प्लीज राइट इट नाउ. देखिए आप लोग, मैं मिटाता हूं.
पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। मैटर के स्टेट कितने होते हैं? हम लोगों ने बात किया था, होते हैं 5, पढ़ना कितना है? 3। आप लोगों को 3 ही पढ़ना है। तो 3 स्टेट में पहला क्या बात करूंगा मैं? सॉलिड। दूसरा क्या बात करूंगा मैं? लिक्विड। और तीसरा बात क्या करूंगा मैं? गैस। ये 3 स्टेट पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बिफोर कमिंग दीज स्टेट हम लोगों को कुछ और जानना जरूरी है। क्या क्या है? पहला मैं समझाऊंगा। सपोज कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल मान लो 2 मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स मैंने बताऊंगा भी, मॉलिक्यूलर एक्चुअली एटम्स सर्कुलर ही मानते हैं, तो सर्कुलर है और इसका जब सर्कुलर का डिस्टेंस नापेंगे, मेजर करेंगे तो किससे नापेंगे? सेंटर से। तो 2 सेंटर, 2 मान लो कि मॉलिक्यूल है और 2 मॉलिक्यूल की जो बीच की दूरी जो होती है ना, दूरी जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। 2 मॉलिक्यूल्स जिससे मिलकर बना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जो दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो प्लीज राइट इन कॉपी, अपने कॉपी में लिखें, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल is called intermolecular space. The distance between 2 molecules, 2 consecutive molecules is called intermolecular space. And now second term is that, this is the first term. Second term is that intermolecular force of attraction. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको देखना होगा। बताइए, अगर हम लोग 2 चुंबक ले हाथ में, मैग्नेट, जितना ही नजदीक लाएंगे अपोजिट पोल को उतना ही अट्रैक्ट करेगा, और जितना ही दूर ले जाएंगे कम अट्रैक्ट करेगा। यस, जितना ही नजदीक होगा अधिक अट्रैक्शन, दूर होगा कम अट्रैक्शन। वैसा ही इस एटम में भी मिलता है, इस मॉलिक्यूल के बीच में मिलता है। जितना ही स्पेस कम होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना ही स्पेस ज्यादा होगा अट्रैक्शन कम होगा। तो एग्जाम में मैं पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, द अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? The distance between 2 molecules is called intermolecular space. यानी दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, अगर स्पेस बढ़ेगा अट्रैक्शन घटेगा, स्पेस घटेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। जितना ही दूर होगा मॉलिक्यूल अट्रैक्शन कम होगा, जितना ही मॉलिक्यूल पास होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दोस्ती में वैसा ही होती है, जितना ही दोस्ती क्लोजेस्ट होती है उतना ही बॉन्डिंग ज्यादा होता है, जितना ही दोस्ती दूर होती है बॉन्डिंग कम होता है। तो वैसा ही ये भी है, जितना ही दूरी अट्रैक्शन कम, जितना ही पास अट्रैक्शन ज्यादा। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, द अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। स्पेस बढ़ेगा अट्रैक्शन घटेगा, स्पेस घटेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो आप लोग इसको लिख लें और दिमाग में रख लें। चलिए, तो मिटाऊं ना, ये तो कंप्लीट हो गया।
intermolecular space and attraction. So my dear students, now I am going to start difference between solid, liquid and gas. आप लोग समझिए, solid, liquid and gas. What is this? पहला है, मैं यहाँ का फोटो बनाऊं, लो, वॉल्यूम सेम है, मैं दोनों का सबका वॉल्यूम मैंने सेम रख रहा हूं, सेम मैंने मॉलिक्यूल वॉल्यूम कर दिया है गैस, लिक्विड, सॉलिड का। और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पार्टिकल्स क्या है, वाओ, लड्डू दिखाई दे रहे हैं, या वाओ, ये लड्डू देखो, यहाँ पे देखो लड्डू, यहाँ पे देखिए लड्डू, थोड़ा सा दूर है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही दूर है, देखो कितना दूर है, वाह वाह। तो फोटो से मालूम चल रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, बट लेस देन सॉलिड, मोर देन गैस। यानी लिक्विड में मॉलिक्यूल पैक है, लेकिन किससे कम, सॉलिड से कम, लिक्विड से, गैस से ज्यादा। सो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखना होगा, molecules are closely packed. Molecules are closely packed. और यहां क्या लिखेंगे, molecules are less closely packed than solid, more than क्या, गैस, गैस से ज्यादा पैक है और सॉलिड से कम है। और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स आर लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट closely packed. Molecules are least closely packed. यहाँ पे closely packed है, यहाँ पे closely packed है, लेकिन किससे कम, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। यहाँ पे सबसे दूर है तो least closely packed। अब बताओ, ज्यादा पैक है तो molecule cannot be compressed, so it is incompressible। देखिए आप लोग कॉपी में, solids are incompressible, means इसको दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि molecules are closely packed। तो पहले, इसके पहले जाने से पहले हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, intermolecular space। सॉलिड में क्या है, सबसे कम, लिखो, सॉलिड हैज लेस, least, not less, least intermolecular space than liquid and gas। और यहां पे लिखना होगा दूसरा में, it has क्या है, less intermolecular space सॉलिड। ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS मैंने लिख दिया है, आप तो पूरा लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किससे कम है, सॉलिड से कम है, और किससे ज्यादा है, मोर देन लिक्विड, मोर देन गैस। और इसके पास तो स्पेस है, तो इट हैज ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS आप लोग लिख लेंगे, इट हैज ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे अधिक स्पेस इसमें है, सबसे कम स्पेस, इसमें स्पेस है, इससे कम, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। तो आप लोग इसको लिख लें। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, मैं बताया था
अगर स्पेस बढ़ेगा अट्रैक्शन घटेगा, स्पेस घटेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे कम स्पेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास स्पेस कम है, सबसे कम है, तो सबसे अधिक क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में। और इसके पास मॉडरेट होगा, इससे कम इससे ज्यादा। तो लिख लीजिए, लिक्विड हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड बट मोर देन गैस, क्योंकि स्पेस इससे इसमें ज्यादा है। तो स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन इससे स्पेस इसमें कम है, इसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने बोला था उल्टा है, स्पेस बढ़ेगा अट्रैक्शन घटेगा। तो यहाँ पे लिखिए लिक्विड में, इट हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड बट मोर देन गैस। लिखिए कॉपी में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट हैज लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा, गैस में। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है, सबसे कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सारी चीज इसी पे डिपेंड करेंगे। स्पेस सबसे कम, सबसे ज्यादा किसमें, गैस में। सबसे अट्रैक्शन किसमें अधिक, सॉलिड में। उससे कम अट्रैक्शन लिक्विड में, सबसे कम किसमें, इसमें। आप बताइए, जितना ही अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल कैन फ्रीली मूव, जितना ही अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल उतना ही आराम से मूव करेगा। तो जब मॉलिक्यूल्स जब मूव करता है तो उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बताइए सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा, गैस में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास सबसे अधिक स्पेस है और वो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है, यानी सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा गैस में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। क्योंकि स्पेस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, सो यू कैन राइट दैट। तो आप लोग का 4 में लिखा दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और क्या आपने पढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी। क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड, मोर देन गैस एंड लीस्ट क्लोजली पैक्ड। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड को दबा सकते हो, नहीं, क्योंकि स्पेस है ही नहीं, तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस, यू कैन नॉट कंप्रेस इट, ये कंप्रेस नहीं होंगे। तो आप लोग लिखिए इसको, आप लोग नहीं इसको दबा सकते हैं क्योंकि स्पेस कम है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस। इसमें स्पेस है लेकिन आपको इसको नहीं लिखना है, इट इज अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। लिक्विड को भी दबा हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली, इट इज अ स्लाइटली लिखना होगा। लिखिए कॉपी में, इट इज स्लाइटली कंप्रेसिबल। एंड अब यहाँ पे गैस में देखिए तो ज्यादा स्पेस है, इट हैज मोर स्पेस एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ लिखिए, इट इज अ मोर कंप्रेसिबल। दैट्स व्हाई गैस को हम लोग जब क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या बनता है, लिक्विड। और कंप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। मींस गैस कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली बिकॉज स्पेस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है। इसको दबाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होता चला जाएगा। सो आप लोगों को मैंने 5 प्रॉपर्टी दिखा दिया, स्पेस, क्लोज पैकिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी। ये 4-5 प्रॉपर्टियां आप लिख लेंगे कॉपी में, आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में मैं पूछूंगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ
आप इसको लिखिए और बाकी क्लास में कल मैं पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।